Good morning, student. Today I am going to explain you the first chapter of history from the PDF, which is the Harappan civilization. So, origin of Harappan civilization. So, what's the meaning of civilization? As you know, in earlier times, man's progress was extremely slow, but agriculture and the use of metal brought about a complete change in man's life. Okay? And early man took up agriculture as his occupation and settled in villages. With the increase of trade, the craftsmen started living together. In this way, villages developed into towns and cities. This in turn led to the rise of cities. The growth of towns and cities is called urbanization. In India, the first city to be discovered was Harappa on the river Ravi. And later another ancient city was found down the Indus Valley. It was named Mohenjo-daro in Sindh. The Indus Valley civilization is also called the Harappan civilization, and it flourished in the region of the Indus Valley and in the area known as Punjab and Gujarat. जो सबसे पहली सिविलाइजेशन इंडिया की थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया से पंजाब एंड गुजरात के एरिया में, जहाँ पर इंडस रिवर है, वहाँ पर फ्लोरिश्ड हुई थी. सो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. So Harappa was the first city from this civilization which was discovered. That's why it's also known as Harappan civilization. Remains of this civilization were buried underground for many years. They were discovered by some people who were digging an area near the river Indus. Archaeologists discovered the ruins of a city in 1921. They named it Mohenjo-daro. Later they discovered ruins of many cities. मीन्स इस सिविलाइजेशन का पता कैसे चला? 1921 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया. कुछ लोग उस वक्त वहाँ पर डिगिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको ये सारे रिमेन्स मिले इस सिविलाइजेशन के, और इसकी स्टडी की आर्कियोलॉजिस्ट ने, और फिर इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया. And it was thought that this civilization appeared to be about 2500 to 1700 BCE. मीन्स ये civilization 2500 से 1700 BCE के आसपास इस civilization का ग्रोथ हुआ था. सोर्सेज ऑफ द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. किसी भी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए उसका सोर्स कहाँ से मिलता है, तो इसके दो सोर्सेज होते हैं. एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है और एक लिटरेसी सोर्स होता है. आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट चीज़ों के थ्रू स्टडी करते हैं, लाइक स्ट्रक्चरल रिमेन्स, ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, ग्रेट ग्रैनरीज एट हड़प्पा, हाउसेज, वेल ड्रेनेज सिस्टम एट्सेट्रा. वाइल डिगिंग दे फाउंड सच टाइप ऑफ रिमेन्स लाइक ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो एंड great granaries. So these are the structural remains like artifact, bronze weights, measure, seals, pottery, terracotta and bronze figure etc. And material remains, grains, husk, cloth piece, amulets etc. And these all remains are helpful for the study of that Indus civilization which were found by the archaeologists, and through which they study about Indus Valley civilization. And apart from above, some of the seals found in Mesopotamian civilization along with the inscription there in cuneiform script which has been successfully deciphered are some of the sources. Means उन सारे remains के अलावा Mesopotamian civilizations के में कुछ सील्स भी फाउंड की गई थी जिसमें इंस्क्रिप्शंस लिखी थी. उस इंस्क्रिप्शंस के थ्रू भी इस सिविलाइजेशन की स्टडी की गई. एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स इस सिविलाइजेशन का
एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक था। मीन्स मैंने आपको बताया कि ये सिविलाइजेशन गुजरात और पंजाब के पास इंडस वैली, इंडस रिवर के पास फ्लोरिश्ड हुई थी, लेकिन इसका एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक हुआ था। तो द ruins of a very old civilization were beneath the ground wherein the actual excavation was being carried on। इस सिविलाइजेशन के जो ruins थे वो बहुत ही गहरे ज़मीन के अंदर थे और जहाँ पर डिगिंग के बाद इसको कैरिड ऑन किया गया। फिर आर्कियोलॉजिस्ट फर्दर डिस्कवर्ड इन हड़प्पा द सेम ruins ऑफ द सिविलाइजेशन एज वर फाउंड एट मोहनजोदारो। जैसे ruins मोहनजोदारो के पास कैरी किए गए थे, वैसे ही ruins हड़प्पा के पास भी डिस्कवर किए गए। ये फाउंड किया गया कि इसका एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा दूर तक था। At Rangoor, Lothal in Gujarat, Ropar in Punjab and in some other places near the Rajasthan, same traces as those at Harappa have been found. In these cities, Harappa's remains were also found. कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सो आफ्टर द डिगिंग एंड आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी दिस, दे फाउंड दैट दिस सिविलाइजेशन इज एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द इंडस वैली। मीन्स ये सिविलाइजेशन इंडस वैली से बहुत ज़्यादा दूर तक एक्सटेंड कर रही थी। एंड द मेन टाउन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल। ये इसके मेन टाउन थे सिविलाइजेशन के। द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन आर पर्सनल क्लीननेस। मीन्स इस सिविलाइजेशन के थ्रू हमको ये पता चला कि उस वक्त के पीपल क्लीनलीनेस पे, टाउन प्लानिंग पे एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न ब्रिक हाउसेस पर, ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उन्होंने मतलब अपना अच्छा बर्न ब्रिक से घर बनाया हुआ था। उनके पास सारे ड्रेनेज सिस्टम थे, वो कॉटन और वुलन टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चर करते थे। एंड दे हैड फाइनेस्ट बाथ फैसिलिटीज़, ड्रेनेज सिस्टम एंड नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन। They people have all knowledge of these kind. They were equally conscious of plant medicine. मीन्स उस वक्त भी लोगों के पास प्लांट मेडिसिन की नॉलेज थी। एंड टाउन प्लानिंग एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट दैट अ होमोजेनस इंडिजिनस कल्चर डेवलप्ड। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड दे ऑल्सो डिड ट्रेड। वो ट्रेड भी करते थे। उनके जो बिल्डिंग्स मिली और उनके जो वो ब्रिक यार्ड मिले, उससे भी ये पता चला कि उस वक्त भी ट्रेड होता था मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में। इकोनॉमिक लाइफ देयर वाज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स उस टाइम सारे एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस था। और द पीपल ऑफ हड़प्पा यूज वेट एंड मीजर्स इन देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन। वो सारे मेजरमेंट करते थे बिजनेस जब करते थे। तो एक्यूपेशन, एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था। एंड वीट एंड बार्ली वर द मेन क्रॉप्स। ये दोनों मेन क्रॉप थी जो वो ग्रो करते थे। और वो एनिमल्स भी पालते थे। शीप, गोट्स, बफेलो वेयर डोमेस्टिकेटेड एंड अदर एनिमल्स वर हंटेड फॉर फूड इंक्लूडिंग डियर। एंड उस वक्त भी गोल्ड स्मिथ, ब्रिक मेकर, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स, ऑल दीज आर्टिशंस वेयर प्रेजेंट एट दैट टाइम। आर्ट, द हड़प्पन स्कल्पचर रिवील्ड अ हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप। में उस वक्त के जो सारे रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि उस वक्त की आर्ट भी बहुत फाइन क्वालिटी की थी। और फिगर्स ऑफ मैन एंड वुमेन, एनिमल्स एंड बर्ड्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड द कार्विंग्स ऑन द सी शो द डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी अटेन्ड बाय द स्कल्पचर। मीन्स उनकी जो आर्ट थी वो बहुत हाई लेवल की थी। फिर मेंस और वुमेंस के फिगर्स मिले, एनिमल्स एंड बर्ड्स के मिले, जो कि ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करते हैं उस सिविलाइजेशन को। पॉटरी, the pottery from Harappa is another specimen of the fine art of the Indus people, and the pots and jar were painted with various designs and color. उस टाइम के जो पॉट मिले हैं उसमें भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन करे गए हैं, ब्यूटीफुली कलर किए गए हैं। सो ये सारे रिफ्लेक्ट करते हैं कि पॉटरी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक बहुत फाइन क्वालिटी की थी।
सो ये सारे उनके थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब फिर एक टाइम के बाद उनका डिक्लाइन हो गया। कैसे उनका डिक्लाइन हुआ इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, बट इसके बहुत सारे रीज़न निकाले गए हैं कि कैसे ये ख़त्म हो गई। तो एक रीज़न ये दिया गया कि हो सकता है वहाँ पर फ्लड आई हो और वो उसने सारी चीज़ों को डुबो दिया हो और वो सिटीज़ ख़त्म हो गई हो। एंड द सेकेंड रीज़न ये दिया गया कि द आर्यन इन्वेजन विच इज़ अ नॉट वैलिड रीज़न, मीन्स आफ्टर दिस सिविलाइजेशन आर्यन केम एंड इट वॉज थॉट दैट आर्यन डिफीटेड देम एंड दे कॉन्कर्ड देम। इस आर्यन ने उस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये एक प्रॉपर रीज़न नहीं था। क्लाइमेट चेंज भी था। इस रीज़न दिया गया कि हो सकता है कि बहुत सारे रेनफॉल डिक्रीज़ हुई हो और वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो गया हो और सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई हो, जिसकी वजह से लोगों को खाने की भूखमरी वगैरह हो गई हो और ये सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया हो। सम अननोन डिसीज़ मस्ट हैव फोर्स्ड, ऐसा भी माना गया कि कोई ऐसी डिसीज़ उस टाइम स्प्रेड हो गई हो जिसने सबको ख़त्म कर दिया हो और ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। तो ये सारे रीज़न दिए गए हैं कि हाउ दिस civilization declined. Conclusion: the Indus Valley people gave to the world its earliest cities, its town planning, its architecture in stone and clay, and showed their concern for health and sanitization, and they built a scientific drainage system in their cities. Means Indus Valley के people ने लोगों को ये सारे उस वक्त के earliest cities दी और ये सारे प्लानिंग करने का तरीका, स्टोन एंड क्ले का आर्किटेक्चर का तरीका और हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का तरीका, ड्रेनेज सिस्टम का तरीका, ये सारे चीज़ों का एग्जाम्पल दिया लोगों को। सो इट वाज अ इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर। सो here it's closed, and in other video I will discuss the second lesson of the PDF. Thank you.